I hope you are doing well during this time. Students, as you know that we are running a series of videos based on LibreOffice base. Students, as you know that the LibreOffice base is very much a very important software for creating the database, as well as we can also do many kind of other operations. Students, as you know that currently we have finished our 3 chapters. Number 1, basic. Number 2, how to create your table, and what are the operations performed on the table. We have finished these 3 things, and today we are going to have a new chapter. The name of the chapter is retrieving data using queries. This is the important chapter here because we are already having some kind of practical knowledge in the previous videos, and I hope whatever things is trying to deliver by the using of video, that is very much clear to you. But still, if you feel that you have any kind of doubt, any kind of question, definitely you can get in touch with me at any time. But students, as you know that your board exam is very nearby, we have a very less time, and still you have to revise yourself, as well as you have to complete your syllabus as early as possible. So I'm with you, beta. I'm with you, students, and we have to complete the syllabus below the due date. So students, without wasting any of the time, now I'm going to give you the what content are there in this video. So students, these are the contents which we will discuss here. First, we will have the small introduction about the same, and then after we will have query. Then after that, creating query using the query wizard. Then how to create the query using the design view, how to edit the same. Then after, the most important thing of this video is applying criteria in a query. In this, there are 3 parts are there. You have to apply the criteria for a single field, then multiple field, and you have to use the wildcards also for creating the criteria. And finally, we are come to the end. That's your performing calculations, okay? And we have to perform the calculations using your functions, right? Okay. So now let's come to our first topic, that we will have the small introduction about the same. Students, as you know that whenever you talk about any of the database of any organization, okay, so that database may or may not have multiple tables. If the database consists of many of the tables, then I think it is very much cumbersome to access that table also. Or if I say that if I want to extract some of the data by using the tables, that's a cumbersome task. That's a tough task for you if you think having a multiple. But LibreOffice giving, or RDMS software giving us some kind of relaxation to us. They are giving us some kind of software. By using that software, we can we can create our query very easily. And queries are made only and only for to extract the data, okay? हमें अगर मान लो कोई डेटा डिस्प्ले कराना है, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तभी हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, okay students? So we'll come later on with what is the definition of the query. But till now, as per the introduction, why we are studying this chapter? Because we have only one motive. We have to extract the records from the table, right? And you know that the table is already there with your database, right? So till now, whatever the chapter we have finished, only we have discussed about the tables, not from the query, form and reports. This chapter belongs only for the query, right? Now students, I hope this thing is very much clear to you, that what objective we are having in this chapter, right? Now students,
we are coming to the next topic, that is what is query. What is query? See, the definition is, it's a simple question. It's a simple question that you have asked to other to get the information. Right, guys? If I am the person, I am asking any question from anybody, they will give some kind of information. That's a query. But according to RDBMS, what is query? According to RDBMS, what is query? The definition says that it's a database object. I have already told you. There are 4 types of database object. First one, table. Second one, query. Third one, form. And the last one, reports. Right now, query is also a database object that enable you to retrieve records from one or more tables of the database, or you are having some different database. Okay, and whenever you are extracting the data from the table, you are trying to give some kind of specific criteria also. So what the exact definition is saying, that the database object, that is your query, enables you to have the records of the tables, okay, and that table is already residing with your database. And whenever you're trying to filter out the data, you are giving some kind of specific criteria. If the criteria meets, you are definitely having your records. Right? Now students, if I talk about what is query table. What is query table? The information retrieved through query. The information which we retrieved from the query, that is stored in a separate table. This is called query table. मतलब क्या हुआ कि जब आप क्वेरी चलाओगे, क्वेरी चला जब रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पर वो डिस्प्ले हो रहा है उस जगह को हम कहेंगे क्वेरी टेबल. राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेरी. द क्वेरी इज यूज्ड टू व्यू, चेंज, समराइज and analyze the particular records from the table in different manner. मतलब क्या हुआ कि जब आप क्वेरी चलाते हो तो आप डेटा तो एक्सट्रैक्ट करके देख ही सकते हो. आप अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप वहां पे चेंज भी कर सकते हो. आप तब आप उसको चेंज भी कर सकते हो आप. ठीक है? अगर आपको समरी चाहिए तो समरी भी आप ले सकते हो आप. फिर इसके बाद अगर आपको सारा डेटा आ गया, आपको एनालाइज करना है तो एनालाइज भी कर सकते हो आप. ठीक है? नाउ queries are used to retrieve data from the table, and result of a query is also displayed in the form of table. मतलब क्या हुआ कि क्वेरी टेबल वो ऑलरेडी एक टेबल, इसमें कि रो है, कॉलम है, वहीं पर क्वेरी के माध्यम से जो डेटा आपका है वो वहीं पर डिस्प्ले होता है. तो टेबल की फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा. तो ये इसका पर्पस हो गया. ठीक है? और अब हमें समझना है कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेरी क्रिएट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लिब्रियोफिस बेस देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट वन बाय यूजिंग द क्वेरी विजार्ड, सेकेंड वन बाय यूजिंग द डिजाइन व्यू, थर्ड वन बाय यूजिंग द सीक्वल. ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्यू. Okay, so now students, we are going to have the practical demonstration. Okay, I have not given the any much data for this because we have to understood it by using our system, right? By using the laptop or desktop, whatever you have, right? So now students, I am going to minimize this thing, and now I am going to open the LibreOffice base. So this this is the database which we have already worked on that. So right now I am going to click on that so that it will be open. Now wait for few seconds. Wait for few seconds. So students, now your LibreOffice base is open now, and we are using the database. The name of the database is student. As you know that this is the database object, table, queries, forms and report. This is the task pane, and whatever the things we have already created here, whatever the tables you have created, whatever the queries you have created, that you have seen on this list. Okay, see, if I click on table, you will have several kinds of table which I have created here. Okay, so it will taking a little bit of time. Finally you have get it here. Okay, many kinds of table are already made according to the requirement of the requirement of the book here. And now I have created some of the queries here
okay, which we will study in this video also. Okay, so students, now it's time to have the how we are going to create the query by using the query wizard. Okay, so first of all, this is your database object, and in this data object we have to click on query, right? Okay, if you see the task pane here, in task pane there are 3 buttons are there. First one is create query using the design view, use wizard to create query, and last one is create query in SQL view. We have to study one by one, right? Okay, so first of all, I'm going to have the how we are going to use the query wizard. So for having the query wizard, I'm going to choose the second one, use wizard to create query. I have just clicked one time. It is taking little bit of time to open it. Just wait for few seconds. Once it is open, we're going to work on this. Still this is taking a little bit of time. Finally, you are able to see the query wizard is open. These are the steps. These are the steps. Overall 8 steps are there, and we have to work on them, right? So I have already made some kind of table for you. Okay, now students, first of all we have to select the which table you want to use here. पहला काम क्या है, कौन सा टेबल आपको यूज करना है. तो यहाँ देखिए कई तरह के टेबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है. ये रही आपकी टेबल. तो जो टेबल है उसके सामने देखिए टेबल लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पर कई तरह के टेबल्स यहाँ पे यूज हुई हैं यहाँ पर. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर किसी एक टेबल को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. किसी एक टेबल को हम यूज कर लेते हैं. जैसे हमने यूज कर लिया यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो. स्टूडेंट इन्फो ये हमारे टेबल का नाम हो गया है. ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बना दिया है टेबल ये. अब उसमें मैंने कौन कौन सा फील्ड लिया है, SID मतलब स्टूडेंट ID, नेम, क्लास, स्ट्रीम, सिटी और मोबाइल नंबर. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें से कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फील्ड इन द क्वेरी, इसमें आपको मूव करना है. ये एक ले लेते हैं SID, फिर मैंने ले लिया नेम, नेम के बाद ले लेते हैं सिटी ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं मोबाइल नंबर. ये चीज़ें मैंने ले ली यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, नेक्स्ट. अब आपका हो गया ये नेक्स्ट. अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पर, जो भी आपने फील्ड लिया है उसको किस तरीके से शॉर्ट करना है आपको, ठीक है. सपोज करिए मैंने ले लिया यहाँ पर स्टूडेंट ID, अब मैंने यहाँ ले लिया डिसेंडिंग, ठीक है. उसके बाद अगर जब ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको अगर और भी कुछ शॉर्टिंग करवानी है तो आप शॉर्टिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है. तो फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, मैं आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं आप. अब मैंने कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है. जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज हम आने वाले इसी वीडियो में आगे हम इसको देखेंगे हम, ठीक है. फिलहाल मैंने कर दिया नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपकी जो क्वेरी है वो किस तरह की है, डिटेल टाइप की है, समरी टाइप की है. अगर डिटेल टाइप की है तो सभी रिकॉर्ड्स आपको दिखेंगे, और अगर समरी टाइप की है तो कुछ आपको यहाँ पर हो सकता है कि रिकॉर्ड्स ना दिखे, या आपको हो सकता है कुछ ही आपको जो यहाँ पर जो रोज है वो आपको विजिबल हो यहाँ पर, ठीक है. तो मैंने डिटेल क्वेरी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया. फिर मैंने कर दिया नेक्स्ट. नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी अगर आप किसी भी फील्ड का एलियस देना चाहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव, एलियस मतलब होता है अल्टरनेटिव नेम. तो यहाँ देखिए जो स्टूडेंट इन्फो है यहाँ पर, ये तो टेबल का नेम है, .SID लिखा हुआ है. तो एलियस नेम क्या लिखा है, SID. ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा लिया है ये. और फाइनली अब हमें करना है नेक्स्ट. ये आपका फाइनल टेबल है आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू, ठीक है. एक ओवरव्यू है. यहाँ पर आपको जो डेटा है किस तरह का आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, देखिए लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी. तो डिस्प्ले क्वेरी है और एक आपका है मॉडिफाई क्वेरी. तो हम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्वेरी पे रहने दें, क्योंकि क्वेरी हमें डिस्प्ले करानी है, ठीक है. ये आपका बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ क्वेरी है ये, ठीक है. अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो आपका यहाँ पर ले लेगा यहाँ पर. चलिए, इसके बाद अब एक काम और बाकी है, वो है आपका फिनिश. ये मैंने कर दिया यहाँ पर फिनिश. अब हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद देखिए अब आपके सामने यहाँ पर डेटा आपका आ गया.
हमने आपसे बताया था कि हमने एसआईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा इसमें स्टोर्ड है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, जितने फील्ड लिए हुए हैं उसके हिसाब से ये आपका देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया ये, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने केवल एक इंटरफेस है और इंटरफेस की हेल्प से जस्ट आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर बताना है कि ये मेरी क्वेरी है और यहाँ पर हम इस तरीके से डेटा फिल्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप right now each and everything is very much clear to you, okay, by seeing this video. Now it's time to have the next topic, okay. Our next topic is creating a query in the design view, okay. So let's close it. Finally it is closed and it is named as query student info 2. This is the name of the query we have already recently created here. Now come to the second topic, that is your how to create your query in design view. We will already study it a very much practical demonstration, right? But in this, first of all, we will have a little bit of theory also, right? चलिए देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पर डिज़ाइन व्यू आप ओपन करेंगे आप, तो आपका जो व्यू, जो आपका इंटरफेस है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, मैं आपको शो कर देता हूँ, मैं साथ के साथ मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ साथ के साथ। ये देखिए, ये आपका इंटरफेस खुला हुआ है और मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया है क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अब देखिए ये जो व्यू आप देख रहे हैं आप, ये जो व्यू है ये है आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन। यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन। और जो उसके नीचे आप देख रहे हैं ग्रिड की फॉर्म में, इस पूरे को बोलते हैं डिज़ाइन ग्रिड, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये सब हमारे यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया देने के यहाँ पर ये सब फील्ड्स हैं, हम इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स हैं, स्टेप्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपको समझाएंगे यहाँ पर कि क्या आपके इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन क्या होता है। ऑलरेडी आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेशनशिप बनाना आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो अगर आपको वो याद है तो प्लीज़ आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपको करना है क्वेरी क्रिएट करते समय। इन केस यू आर स्टिल अनेबल टू रिमेंबर द हाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप, देन आफ्टर नो वरी अबाउट इट, जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन हैव द नॉलेज अबाउट द सेम, राइट। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पैन होता क्या है ये। इट डिस्प्ले द टेबल्स, यानी कि आप वहां पर क्या करेंगे, टेबल डिस्प्ले कराएंगे सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी, यानी पहला स्टेप क्या हो गया, यहां पर आपको टेबल दिखाई देंगे। इन द केस ऑफ मल्टीपल टेबल, अगर मल्टीपल टेबल्स हैं, द फील्ड लिस्ट ज्वाइंड बाय अ लाइन, यानी कि दो टेबल अगर आपने कर दी, दो से ज्यादा कर दी, उनके बीच में रिलेशनशिप आपको दिखाना है, तो एक आपकी लाइन की हेल्प से हम रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, ठीक है। विच लिंक्स द की फील्ड, यानी कि जब रिलेशनशिप हम दिखाएंगे जिस लाइन की हेल्प से, वो क्या करेगा, दो की फील्ड्स को, यानी दो एट्रीब्यूट्स को, दो कॉलम्स को वो क्या करेगा, मिला देगा, ठीक है। दैट शेयर द सेम फील्ड नेम एंड इंडिकेट टेबल रिलेशनशिप दैट रिलेज द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। ओवरऑल अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, दो टेबल आपको वहाँ पे ऐड करना है, ऐड करने के बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप तभी स्टैब्लिश होगा जब आपको वहाँ पर कुछ कॉमन मिलेगा। आपको कॉमन क्या क्या चीज़ हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है, एक का प्राइमरी की रहेगा, दूसरे का प्राइमरी की, दोनों को आपस में एक लाइन की हेल्प से रिलेट कर देना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली समझेंगे इसको हम कैसे करना है। फिलहाल हम समझते हैं व्हाट इज डिजाइन ग्रिड। डिजाइन ग्रिड क्या होता है। इट इज यूज टू ऐड फील्ड, क्या ऐड करना है यहाँ पर, फील्ड ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द सेलेक्टेड टेबल, यानी कि जो टेबल आपने रिलेशनशिप बनाने के लिए सेलेक्ट की है उसी की हेल्प से जो भी फील्ड आपको मिले हैं उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको वो जो ऐड करने का जो तरीका है, या तो आप ड्रैग करिए या आप डबल क्लिक कर दीजिए, दोनों से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक ऐसा ग्रिड जहां पर हम फील्ड्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका विंडो है, ये सब चीजें जो आपका नीचे डिजाइन ग्रिड में जो आपका फील्ड्स के नाम आपको दिख रहे हैं, ये क्या चीज है, एक एक करके हम लोग समझते हैं यहाँ पर।
चलिए सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर फील्ड क्या होता है। फील्ड मतलब ये है जिन जिन फील्ड को आप क्राइटेरिया में यूज करना चाहते हैं वो चीज वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। इट डिस्प्ले द सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है। एलियास का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव नेम, एक टेम्परेरी नेम, एक ऐसा नेम जिसको आप कुछ समय के लिए यूज करना चाहते हैं। इट अलाउज द यूजर टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ फील्ड। टेबल क्या होता है, जो टेबल है उसका नाम वहाँ डिस्प्ले होगा। शॉर्ट मतलब आपको जो डेटा है उसको आप असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, वो आपको वहाँ पे है। अब वहाँ पर जिस डेटा को विजुअल कराना है वहाँ पे चेक बॉक्स होगा एक, उसको टिक करना पड़ेगा। नहीं डिस्प्ले कराना है, हाइड कराना है तो वहाँ पे अनटिक करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ पर विजुअल है तो ये चेक बॉक्स है, ये इसको अगर आपने टिक कर दिया तो डेटा विजुअल होगा, नहीं किया है तो डेटा विजुअल नहीं होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब। फिर इसके बाद हमारा क्या है, फंक्शन। फंक्शन में क्या चीज है, इट इज यूज टू अप्लाई द फंक्शन, यानी कि हम जब क्राइटेरिया बनाते हैं करते हैं तो फंक्शन की हेल्प से भी हम कर सकते हैं हम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, सबसे आपका इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कंडीशन, ठीक है। इट कंटेन्स द कंडीशन। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, कंडीशन। उस कंडीशन के बेस पे हम अपना आउटपुट या रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले करवाते हैं। और अगर मान लो एक से ज्यादा कंडीशन है तो और आप यूज करोगे, आप एक से ज्यादा कंडीशन है तो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपको मिलेगा रिजल्ट उसी हिसाब से। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे, वो है आपका whenever you want to execute your query। अगर आपको अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है आपको, तो आप यहां पर रन क्वेरी बटन पे आप जाएंगे जो कि टेबल टूलबार में मौजूद है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यू प्रेस F5 फ्रॉम योर कीबोर्ड। कीबोर्ड से F5 भी प्रेस कर सकते हैं और वहां से आपको प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा, प्रॉपर रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए ये रही थोड़ी सी थ्योरी, और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और वहां पे समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेरी बनाना है डिजाइन व्यू में, ठीक है। किस तरीके से हमें क्वेरी बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। Okay student, so first of all this is the interface which is already opened here, and please make sure that your table must be made earlier। टेबल आपकी पहले से बनी बनाई होनी चाहिए, हमें बनाना है केवल क्वेरी। चलिए क्लिक किया हमने, कहाँ पर क्लिक किया, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यहाँ पे हमने क्लिक किया और आपके सामने ये विंडो आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये मैंने बताया था रिलेशनशिप पैन है आपका, और ये आपका है डिजाइन ग्रिड नीचे जो आप देख रहे हैं आप, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है, कुछ टेबल्स को इंसर्ट कराना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सपोज करिए मैंने स्टूडेंट इन्फो मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर। और स्टूडेंट इन्फो को ऐड करने के बाद हम एक टेबल को और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है स्टूडेंट मार्क, और यहाँ पर हमने कर दिया क्लोज। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए आपको बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा स्टूडेंट इन्फो ये टेबल, और दूसरी टेबल हमारी है स्टूडेंट मार्क, ठीक है। तो अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो करना क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करिए, माउस के लेफ्ट बटन को आप दबाए रखिए, प्रेस कंटिन्यूअसली। नाउ ड्रैग योर माउस लाइक दिस एंड रिलीज योर माउस। This is the relationship now maintained here, and once you have created the relationship, now you can have your required data। अब आपको अपना जो डेटा है वो बहुत आराम से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम आ गए फील्ड पे। फील्ड पे जो जो फील्ड आपको जिसका आपको डेटा चाहिए वो फील्ड हम पहले सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया SID, और इससे रिलेटेड जो टेबल है इस पर मैंने क्लिक किया, तुरंत आपका यहाँ पे आ गया ये। फिर इसके बाद और फील्ड आपको चाहिए, और फील्ड ले सकते हैं यहाँ पर। SID के अलावा हमने ले लिया नेम, यहाँ पे इसका टेबल नेम। और आपको क्या चाहिए इसके अलावा, अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश ले लिया यहाँ पर। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर हिंदी। फिर इसके बाद एक और ले लेते हैं हम मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करते जाइए, टेबल आपको अपने आप आ जाएगा ये,
तो यहाँ देखिए स्टूडेंट इन्फो है, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट मार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट करवाना है, ठीक है, जिसके बेस पे शॉर्ट कराना है, तो असेंडिंग कराना है, डिसेंडिंग कराना है, ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल डिसेंडिंग, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हम क्राइटेरिया इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर केवल उनके मार्क्स डिस्प्ले करो, ठीक है, केवल उनके मार्क्स डिस्प्ले करो, ठीक है, जो मोर देन 80 पाए हो, मोर देन 80 पाए हो। तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया और यहाँ पा दिया 80, ठीक है। चलिए ये हमारी हो गई क्वेरी। क्वेरी होने के बाद अब हमें क्या करना है, रन करना है। तो कीबोर्ड से F5 पे प्रेस कर सकते हैं आप, और उसके अलावा यहाँ पर ये रहा आपका बटन रन क्वेरी, इस पर आप क्लिक करिए। मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। केवल एक बच्चा ऐसा है जो 80 के ऊपर पाया है, ठीक है, जो ग्रेटर देन 80 है आपका। लेकिन मैंने जो कंडीशन लगाई है, किसके लिए लगाई है, मैंने यहाँ पर केवल इंग्लिश के लिए लगाई है, बाकी हिंदी और मैथ में नहीं लगाया है। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफ़ॉल्ट है आपका, लेकिन देखिए 80 यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मैंने ये कंडीशन हटा दिया और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया ग्रेटर देन 80, ठीक है, और यहाँ भी लगा देता हूँ ग्रेटर देन 80, ठीक है। फिर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया, क्लिक करके अब हम सोचते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। देखिए कोई भी बच्चा यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आया है। यानी कि क्वेरी रन करते समय आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पर रिजल्ट आपका कैसा आ सकता है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर केवल ब्लैंक भी आ सकता है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, so till now I think you each and every student is now understood that how to create your query inside the design view, okay, and this is the way to extract your records from the table. Okay, so students, right now I'm just going to remove this one more time, and then I will try to show you that how the records is filtered from the table if the table is having the particular relationship. Okay, now I have removed the criteria here. Now I'm going to click run query. See, the data is arrived here. Okay, finally you have already overall data is there. I have told you that this is the data, descending data, name, English, Hindi, math, each and every data is visible here, right? But if you want to, the particular data is not going to visible here, then what you'll do here, you will just uncheck it and then run again. Name is disappeared, right? If you want to again check, it will take, then press again the run query, you will have the same data. So students, this is the thing, by using these things you are going to create your criteria, create your query. Okay students, now students, we are going to have a new topic here, that is how to edit your query. I have told you this is the list of your content which is going to have in this video. Okay, so now we have, till now we have reached here editing a query. Okay, now let's minimize it, and now this is the window you have. Now let me close this one. First of all, it is asking for the save, just click yes. Again you have to give the name of the your query. Okay, suppose I have written here students underscore details 1. Finally click on OK. Now it is closed now. So students, right now you have able to see here that what kind of data is going to have in this. But right now how to edit the same. Suppose I am just going to open the same, this one, make a right click here, make a right click. If I do the right click here, just go to the edit here. Finally you will have this window. Okay, so in this video what you are going to do, this only just make the some editing work, right? Suppose if you want to relate this one from the any other thing, then you can do that. Okay, if you want to uncheck here, you can also do the ascending work here. Okay, many things you can do. But apart from this,
apart from this, you can also view this in a design view. Suppose I have just right click here, and then if you want to have the view here, it is asking for the table, right? Okay students, so if you click on edit again, this is the name of the view, query design view, and here whatever the changes you want you can do here. Okay, suppose I does not want to view here, okay, that I have made a uncheck here, then click on run query. Finally you will have only marks of two subject, not the third one, right? I think you are able to understand. Finally, the next topic is applying criteria in a query. So that's the most important part of this LibreOffice database, and we'll have this topic in next video. But students, if you have any kind of doubt, any kind of question, definitely you can get in touch with me. Okay, and right now I just want to give you a thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos for having the great knowledge about the different topics. One more time, thank you so much.